तालीमी इदारों और दीगर मकामात पर मंशियात सप्लाई करने वाली माँ, बेटी, बेटा और दामाद गिरफ्तार। रफ़ीक और साजदा दोनों KPK से मंशियात लेके आते थे। इसमें 25 किलो चरस है और 50 किलो फ्यून है। हमारे साथ इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फ़रोख्त करने वाली माँ और बेटी मौजूद है। इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजदा है। साहिदा बीबी, कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇ ਲਓ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਦੇ ਲਓ ਆਪਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਧਰੋਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੰਸ਼ਿਆਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ, ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਗੁਜਰਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇ ਬੇਟਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਫੋਟੋ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਿਆ ਕਰ ਤੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੰਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਵੀਰ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੂੰਗ ਤੇ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਹੋਂਡੇ ਤੇ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੰਸ਼ਿਆਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਵੀਰ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਫੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਮੰਸ਼ਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜੋ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 1000 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ? ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। 200 ਦਾ ਆਟਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, 50 ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲਈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਉੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਈ, ਘਰ ਆ ਕੇ 200-400 ਲੈ ਕੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜ਼ਈਫ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਮੰਸ਼ਿਆਤ ਹੈਗੀ, ਅਫਿਊਨ ਹੈਗੀ, ਚਰਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੇਟਾ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਨਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵੇਚਦੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਮੇਰੀ बेटी जी। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम राबिया। राबिया, आपको नहीं पता था इसमें मंशियात है? नहीं सर, मैं तो रहने के लिए अम्मी का पता लेने के लिए आई। मेरी सास को अभी 1.5 माह हुआ फोत हुई, तो मैं आई नहीं थी, बीमार थी वो, अम्मी हॉस्पिटल में दाखिल थी, तो मैं उनके पास थी उनका ख्याल रखने के लिए। तो 1.25 महीने के बाद मैं अपने घर से आई हूँ अम्मी की तरफ। तो मुझे पता ही नहीं, जब ये सामान भी आया, मैं उस टाइम भी घर पे बाज़ार गई हुई थी। मैं मेरे मियाँ लेने आए, वो सब्ज़ी का काम करते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं भाई। कहाँ पर बेचते हैं? ये इधर शेरों वाले साइड पे फेरी करते हैं वो। आपके मियाँ, आपका भाई इस काम में मुलविस नहीं है? नहीं सर जी, मुझे तो पता ही नहीं है सर जी। कैसे नहीं पता? आपके बैग में से सैंपल निकले? पता नहीं भाई, वो किसने डाला, मुझे तो पता भी नहीं है। नहीं, आपको कब पता चला कि सैंपल निकले? भाई मुझे तो पता भी नहीं है, मेरा बैग उधर पड़ा हुआ था अम्मी के घर, मतलब उधर टांगा हुआ था मैंने। नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं अम्मी के? एक भाई है मेरा, एक भाभी है, एक अम्मी है बस। तो इसका मतलब भाभी, अम्मी और भाई ने रखे थे? पता नहीं सर। नहीं, कैसे नहीं पता?
सर मुझे नहीं पता वो, पूछा नहीं आपने? नहीं मैंने तो देखा ही नहीं, उन्होंने निकाली थी भाई। आप पहले जाती थी और पहले खुद विजिट करके आती थी, उसके बाद आप लोग सप्लाई करते थे? भाई नहीं, मैं जाती नहीं हूँ भाई, मैं एक दफ़ा भी नहीं देने के लिए गई ना, मुझे पता किसी बात का भी भाई। अभी भी अगर आप लोग झूठ बोलते रहेंगे ऐसे ही तो फिर तो आप फ़ायदा कोई नहीं है। भाई मैं झूठ नहीं बोली, मान कुरान की बचत तो आपकी वैसे भी नहीं होनी। भाई मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता किसी बात का ना, जब मैंने कभी इस तरह का काम ही नहीं किया भाई, मैंने इस तरह का काम नहीं कभी किया भाई। माँ जी, कौन रखता था इनके बैग में मंशियात? बेटा मैंने फड़ा गया एक ढाली एक इन्नी क्या भाभी रख लो, मैं सुबह के दे दूँगा। नहीं, कौन फड़ा के गया? पैकेट देने बड़े बड़े गए ने, इन्नी किस तरह डली आ? भाई ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸੈਂਪਲ, ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸੈਂਪਲ? ਇਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਖਰੇ ਖੁਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਟੰਗਾ ਹੀ ਬੈਗ ਇਹਦਾ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਬੀਆ ਦਾ ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਪਿਆ? ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹਨੇ ਟੰਗਿਆ ਬੈਗ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਸ਼ਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਰਾਬਿਆ ਬੈਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ? ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮਹੀਨਾ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਐਂਡੇ ਕੀ ਅਖੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ? नहीं बेटा घट नहीं बता रही सोने, झूठ नहीं मारना है बेटा, देख झूठ क्यों मारना है। हमारे साथ इस वक्त DSP CIA मॉडल टाउन हुसनैन हैदर मौजूद है, इनसे जानते हैं। हुसनैन साहब ये बताइएगा कितने मुलजिमान हैं और ये मंशियात कहाँ से लेके लाहौर आते थे और यहाँ किन जगहों पर फ़रोख्त करते थे? ये एक मंशियात फ़रोशों का गिरोह है जो कि लाहौर में तालीमी अदारों के गिरदोनवा में मंशियात फ़रोख्त करते हैं, और इनके 4 लोगों को हमने गिरफ़्तार किया है, जिनमें से एक जो है वो अभी तक मफरूर है। रफ़ीक नामी शख्स, रफ़ीक और साजदा दोनों KPK से मंशियात लेके आते थे, और साजदा अपने बेटे बेटी और दामाद के ज़रिए लाहौर में हर तकरीबन तलीमी इदारे के बाहर मंशियात फ़रोख्त करते थे। ये तलीमी इदारों में मंशियात की बढ़ती हुई कार्रवाई को देख कर और इस नसूर मंशियात को ख़त्म करने के लिए IG साहब पंजाब ने स्पेशली और CCP साहब लाहौर ने SSP साहब CIA को टास्क दिया कि ये मंशियात जो तलीमी इदारों के गिरदोनवा में फ़रोख्त होती है, इसकी जो मेन सप्लाई करने वाले हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। तो मैंने अपनी टीम एक लगाई कि पहले चेक करें कि सप्लाई देते कौन लोग हैं। तो इस तरह 1 महीने की मेहनत के बाद इस गिरोह को रंगे तो मंशियात समेत गिरफ़्तार कर लिया, जिनसे 75 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई, और जो करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात है। इसमें सिर्फ चर्स बरामद हुई है या और भी कोई चीज़ है? इसमें 25 किलो चरस है और 50 किलो फ्यून है। इसकी कितनी मालियत बन जाती है? इसकी करोड़ों में मालियत बनती है। तो ये वहाँ से जब लेके आते थे तो इनको कभी किसी ने नहीं पकड़ा? पहले भी कोई रिकॉर्ड याफ्ता हैं? बिल्कुल, ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं। ये बेसिकली बलखा गांव है एक, ये नारंग रोड पे कालकताई के पास। ये उधर के रहने वाले हैं। गांव तकरीबन मंशियात फरोशों का गांव है। इन्होंने इधर घर लिया हुआ था, शफीकाबाद के इलाके में करीम पार्क में किराए पे घर लिया हुआ था। तो इनकी रैकी करते करते हमारी टीम उधर पहुंची, और वो कोशिश यही थी कि ये मंशियात समेत पकड़े जाएँ। जैसे ही मंशियात की सप्लाई इनकी आई है तो उसी वक्त इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, मंशियात बरामद कर ली गई है। ये लोग सिर्फ तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करते थे या फिर और बाहर भी लोगों को जो इनसे लेना चाहे किसी और मकाम पर खुद जाके सप्लाई देना? कौन थे लोग? और ये इन्होंने जो आगे एजेंट रखे हुए थे अपने, ये खुद ही सप्लाई उनको देते थे। ये कभी बेटी इसकी चली जाती थी, कभी इसका बेटा चला जाता था। ये ज़्यादा इस्तेमाल औरतों का साथ इसलिए करते हैं कि औरतों को रास्ते में चेकिंग कम होती है। कभी मोटरसाइकिल पे, कभी रिक्शे पे, कभी गाड़ी पे ये मंशियात सप्लाई करके आते हैं। मुलजिमा का कहना है कि उसे 1000 रुपये सिर्फ रफ़ीक देता था और उसको नहीं मालूम था कि ये कहाँ से आती है, किन लोगों को देनी है, सिर्फ इसके उसने साथ लेके जाता था। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। अगर रफ़ीक लेके जाता होता तो रफ़ीक अपने घर में रखता। ये खुद साथ मुलव्वस है, साजदा पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। ये खुद साथ जाके मंशियात लेके आती थी और सप्लाई आके सारी मंशियात यही करते हैं। अब मुलजिमान के ख़िलाफ़ किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया और इनको कितनी सज़ा हो सकती है? इन नार्कोटिक्स एक्ट के ख़िलाफ़ इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और सज़ाएँ इसमें इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी, और तमाम एविडेंस जो है वो अदालत में मुहैया की जाएंगी, और इंशाअल्लाह ये कैफ़र किरदार तक पहुँचेंगे। अभी पुलिस ने कितने मुलजिमान को गिरफ़्तार किया और कितने रह गए?
पुलिस ने 4 को गिरफ़्तार किया और 1 रह गया रफ़ीक जो है। गिरफ्तार मुलजिमान में कौन कौन है? गिरफ़्तार मुलजमान में साजदा है, उसकी बेटी राबिया और एक उसका बेटा और एक दामाद है। ये हमारे साथ DSP हुसनैन हैदर मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मंशियात की बड़ी खेप जिसको पुलिस ने अपने कब्ज़े में लेकर और मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया है। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।